Just confirm me if all of you able to see the screen. Yes, visible. Okay. And there is a view option, right? So अगर आपको दिक्कत हो रहा है, if you are not able to see properly, then click on view and then click on here full screen. You can enter the full screen. So you have the better view in that case. Now, so today's class is regarding your Azure admin, Azure administrator, and this is the Microsoft official course curriculum. And we have total 11 modules in this course. We have total 11 modules in this course. Module 1 is related to your identity, like how to manage cloud users and group. Like in a on-premise, जैसे कि on-premise में we use Active Directory. Similarly, on a cloud we use the Azure cloud, and there we have the Azure Active Directory. So Azure Active Directory के अंदर we create users and group, and then we do the lab. Every module have a theory plus lab. हर एक मॉड्यूल में हम लोग थ्योरी भी करेंगे, लैब भी करेंगे, and we will do 100% lab. Module 2 regarding the governance and compliance, like how to apply the policy, how to control your Azure. Hello. Yeah. If you don't have any question, request you please mute yourself. Otherwise, just background noise basically coming. So module 2 is related to governance and compliance, and here we will discuss about the Azure policy and how you can give the access. Then we'll do the lab. Module 3 is related to Azure administration. There are multiple tool, बहुत सारे tool हैं जिस tool का use करके you can manage Azure cloud, like Azure portal. Azure portal is a graphical user interface. You can use the Azure PowerShell or CLI. These two are the command line tool. You can use the resource manager template for the automations. So we will use all of tool and we'll do the lab also. Then we have the virtual networking. Like all of you are network engineer, so you must know network is the pillar. It's the base of any infrastructure. Without network, you can't build the infrastructure, right? So on a Azure cloud, how you can create a network, what would be the IP address scheme, right? How you can protect your network, कैसे network create करेंगे, कैसे IP address planning होगी, कैसे IP address आप assign करोगे, नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फायरवॉल कौन सा यूज करेंगे, जैसे पोलो अल्टो है या शेयर ये इसका F5 है या फिर बाराकोडा है या you can use Microsoft native cloud. So here we will talk about the Microsoft Azure native firewall. So that is a Azure firewall. So how you can use the firewall on an Azure network, how you can use the DNS for the name resolution. All those things we'll discuss in module 4. It's a very interesting topic. And then we will do the lab. Module 5 is inter-site connectivity, like a VPN, how you can configure the VPN, how you connect multiple network, right? So in a on-premise, if you have different network, you use the routing. Generally हम लोग क्या करते हैं, अगर अलग-अलग network है, then we will create a routing. We'll use the router. But on a Azure, we'll use the peering. So what is the network peering? What is the VNet peering? What is the VPN? What is the express route? Those things we'll discuss in this module. Then we have the network traffic management, meaning how you can distribute the load. अगर लोड एक ही सर्वर पे बढ़ जाएगा तो सर्वर हैंग हो सकता है, बंद हो सकता है, या सर्वर अगर डाउन होगा तो एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगा. So अगर मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए या आई वांट टू डिवाइड माय ट्रैफिक, इन दैट केस क्या यूज करेंगे, लोड बैलेंसर. So in this topic we will use the load balancer, Azure load balancer, application gateway, it is also a load balancer, traffic manager is a load balancer. So all different types of load balancer हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका लैब करेंगे.
देन मॉड्यूल 7 में स्टोरेज सर्विस है। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कंपनी में काम करो, स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर मैं घर में हूँ, मुझे डेटा स्टोर करना है 1 GB का 2 GB का, तो हम लोग यूज करते हैं पेन ड्राइव। अगर डेटा स्टोर करना है 100 GB 200 GB 500 GB, तो क्या यूज करते हैं, हार्ड डिस्क। लेकिन अगर डेटा टेराबाइट में हो तो हम कंपनी में सैन यूज करते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। Similarly, on a Azure cloud, we use the storage account, a different storage service. So how you can configure the storage account service, how you can create a blob storage, storage security, how you can protect your data, how you can share the data with your customer and client. All those things we'll discuss in module 7. And then we do the lab. Then we have module 8 regarding the virtual machine. We can create a server, we can manage the server, and we'll do the lab. Module 9 is serverless compute. Serverless compute means without any server you can deploy the application. बिना सर्वर के एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं serverless compute. So we'll do that including the lab. Then we have a data protection, how you can take the backup of your VM. सर्वर का कैसे बैकअप लेंगे, कैसे रीस्टोर करेंगे. Then monitoring, how you can monitor your Azure services. So this is your official course curriculum, and after then you can appear in a examination, you can take the examination. आप एग्जाम दे सकते हो. माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एग्जाम है AZ 104 माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडमिनिस्ट्रेटर, और इसकी कॉस्ट है 4,800 रुपया एग्जामिनेशन कॉस्ट. लाइक सिस्को का आप CCNA या CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग पेपर देते हो सिमिलरली. Any question? Anyone have any question in related to course content? कोई भी क्वेश्चन हो, feel free to ask. अफजल बोल रहा हूँ सर, मैंने अभी रिसेंटली Yes, Afzal. AWS से क्लाउड आर्किटेक्चर कंप्लीट किया अभी मैंने. Okay, great, great. तो मैं ये हाँ. पूछ रहा था सर कि इसमें AWS का और Azure में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बेटर कौन होगा अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बेटर है. दोनों में जो है जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इस समय Azure जो है स्लाइटली एज है. Azure को थोड़ा सा एडवांटेज है. Azure पे जॉब कंपैरिजन में ज्यादा है फिलहाल के लिए, और पैकेज भी ज्यादा मिल रहा है. क्योंकि पहले अगर आप 3 साल पहले की बात करते तो मैं बोलता कि AWS, लेकिन अभी 2022 की हम बात कर रहे हैं और 23 शुरू होने जा रहा है, तो इस टाइम पे Azure इज बेसिकली क्लियर विनर. और उसका रीजन है, उसका क्या रीजन है, कंपनी जैसे जैसे कंपनी क्लाउड पे जाना चाहती है, सारी की सारी कंपनी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करती है. चाहे वो एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रही हो, या सर्वर एक्सचेंज सर्वर यूज कर रही है, या शेयर पॉइंट यूज कर रही है, या टीम यूज कर रही है. तो अगर कंपनी कल को क्लाउड पे जाना चाहती है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा सूटेबल लगता है एज कंपेरिजन टू AWS, क्योंकि ऑलरेडी वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करती है कंपनी. और इस कारण अभी नंबर ऑफ कंपनी, जो कंपनी ऑलरेडी AWS यूज करती है, वो कंपनी भी, दैट कंपनी आल्सो यूजिंग द Azure cloud nowadays, and they are also thinking to migrate from AWS to Azure. So slightly now market trend is changing right now. You can say this is that, and इसी कारण आप देख रहे होगे, you can observe also that on AWS so many changes from last 6 months. Lots of changes they basically did, and they are doing on that, they are upgrading. So market का जो आप बोलो competition cloud में 3 पिलर है, AWS, Azure and GCP. तीनों में जबरदस्त कंपटीशन है. GCP अभी स्लाइटली थोड़ा सा पीछे है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी बूम कर रहा है, तो अभी चलेगा, मतलब उसकी भी रेट ऑफ ग्रोथ अच्छी है. क्लियर? सर मेरा भी एक क्वेश्चन था. हाँ. जैसे मैंने भी CCNA मतलब किया हुआ है अच्छी तरह, और बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही. लेकिन क्या है कि MCSA में ना मतलब 2008 सर्वर हमारे यहाँ यूज होते हैं,
तो वो मैंने किया हुआ था ऑलरेडी, मतलब कोर्स काफी टाइम हो गया, मतलब ये बेसिक थोड़ा बहुत पता है बस, मतलब कैसे करते हैं। तो इसके बिना भी हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मतलब सीख सकते हैं ये सारा जो भी क्लाउड? बिल्कुल बिल्कुल, या कोई वो एज्योर को सीखने के लिए कुछ भी प्री रिक्वेस्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आईपी आता है, अगर आईपी जी, एड्रेस वो आता है नेटवर्किंग की तरफ से मैं मतलब सीसीएनए लेवल तक बिल्कुल स्ट्रांग है इस वक्त। बहुत बढ़िया, तो अच्छा कोई खासा। दिक्कत नहीं ठीक है। है। आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता होना चाहिए, इंटरनेट यूज करने आना चाहिए। अगर इतना चीज अगर आपको आता है तो आप क्लाउड कर सकते हो, और एज्योर क्लाउड तो बिल्कुल कर सकते हो। एज्योर क्लाउड की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं, है। वो तो सर और हेलो, ली अच्छा अच्छा। हाँ सर, मैं कह रहा और हूँ लिनक्स भी करना है इसके लिए, या नहीं नहीं लिनक्स भी नहीं, आना कोई चाहिए? जरूरी लाइन नहीं नहीं, कोई अच्छा, जरूरी नहीं है। लाइन। आप क्लाउड पढ़ रहे हो, लिनक्स एडमिन थोड़े ना बनने जा रहे हो। आपको ठीक लिनक्स ठीक एडमिन ठीक। बनना है तो लिनक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको क्लाउड एडमिन बनना है तो उसके लिए ना लिनक्स चाहिए ना विंडोज चाहिए, है ना? ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ठीक मतलब ठीक। ये कोर्स करने के आवाज बाद बहुत कट रही है सर, इंटरप्शन बहुत आ रहा है। अब ठीक है। जी थोड़ी हेलो, देखते हैं कि आप नहीं, आई बोलोगे तो थिंक पता चलेगा। प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पे है, क्योंकि सर के पास हाँ हमें भाई। बिल्कुल साफ आ रही है, इट्स क्रिस्प। हाँ अच्छा पूछो, क्या अच्छा, हो पूछ रहे सकता थे? है। ठीक। सर मैं ये पूछना चाहता था कोई कि मतलब कोई हम्म, पूछ रहा है शायद, कोई बीच में शायद कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई वो पूछ ले पहले। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? ओके ठीक है, बाद में पूछ लेना। अगर अभी क्वेश्चन याद नहीं तो बाद में पूछ लेना, कोई बात नहीं। सर सो मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ शायद मैंने लेट ज्वाइन किया था, इसलिए इंट्रोडक्शन सर आपका इंट्रोडक्शन मैंने मिस कर दिया, अगर आपने दिया है तो। ओके ओके, कोई इशू, मैं फिर से दे देता हूँ। माय नेम इज शैलेश कुमार एंड I have around 21 years of experience. I have certified Azure Admin, Azure Architect, Azure Security. Apart from that, I also have a certification on AWS Solution Architect and Google Cloud. Sorry to And interrupt you. apart from that, I also have some other global certification like MCSC, NCCNA, Security Plus. So total, I have very vast experience in a training field for the individuals as well as professional and corporate. And currently I'm working with one of the MNC, and I have associated with NCP from since I think 2002. It's a long relationship with the NCP. So Thank you, this sir. is all about me. Thanks. So now, okay, so we are talking about the cloud, but before the cloud, you have to understand the data center. क्लाउड जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा डेटा सेंटर। हर एक कंपनी के पास डेटा सेंटर होता है। विदाउट डेटा सेंटर कोई कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती, अगर वो मीडियम साइज टू बिग साइज कंपनी है। डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर के अंदर कंपनी अपना सर्वर, जो भी कंपनी का सर्वर है वो डेटा सेंटर के अंदर रखती है। लेट सपोज एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी, और एबीसी कंपनी के पास डेटा सेंटर है। इस डेटा सेंटर में दे स्टोर द servers like application server, web servers. They have the AD server for authentication. They also have the routers, the switches for the connectivity, for the connection, right? So these are the server they have in data center. अब डेटा सेंटर में इतने सारे सर्वर होंगे तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा, लॉट्स ऑफ हीट। और जब हीट जनरेट होगा तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कूलिंग सिस्टम। सो वी नीड अ बेस्ट कूलिंग सिस्टम, air conditioning system. So ABC company also set up a conditioning system, air conditioning system, you can say air conditioning. और क्या चाहिए? और हमें चाहिए UPS। क्यों? Because जितने भी सर्वर हैं, all servers should run 24/7. So we need a UPS, uninterrupted power supply. We also need a manpower. टाइम टू टाइम हार्डवेयर अपग्रेड करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, डेटा सेंटर को मेंटेन करना है। तो ये सब के ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है ना।
तो लेट सपोज कि एबीसी कंपनी जो है वो $200 पर मंथ खर्च करती है ऑन ए मेंटेनेंस ऑफ द डेटा सेंटर. नाउ Microsoft engineer visited to ABC company, met with the CTO and senior manager, and they offered that if they migrated all the server to Microsoft data center, then their maintenance cost will be reduced to $50. अब देखो ये तो बहुत अच्छा डील है. अगर माइक्रोसॉफ्ट बोलती है कि आप अपना सारा सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में अगर मूव कर देते हो, तो आपका जहां $200 मेंटेनेंस कॉस्ट खर्च हो रहा है वो $50 या उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आपको डेटा सेंटर मेंटेन करना नहीं है, ना उसकी कूलिंग सिस्टम देखनी है, ना उसका पावर सप्लाई देखना. एवरीथिंग इज टेकिंग केयर बाय माइक्रोसॉफ्ट. सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट करेगी क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर होगा. देयर फिजिकल कनेक्टिविटी, देयर पावर सप्लाई, देयर कूलिंग सिस्टम, देयर फिजिकल सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज टेकिंग केयर बाय माइक्रोसॉफ्ट. अब ये तो अच्छा डील है, कंपनी तैयार हो जाती है. ठीक है, इससे कंपनी का कॉस्ट बच रहा है, हेडेक बच रहा है डेटा सेंटर को मेंटेन करने का. So after then Microsoft engineer, they have migrated their server from their data center. It means ABC, their on-premise data center, to Microsoft data center. This is the Microsoft data center. So now they have a server AD migrated from on-prem data center to Microsoft data center. They have migrated the SQL server. They have migrated the web application, web servers. They have migrated other application server. This is your MS data center. Now this place after the migration, कंपनी क्या कर सकती है, ये सारा सर्वर को डिकमीशन कर सकती है. सारा उसका जो नेटवर्क डिवाइस है, राउटर, स्विचेस, सर्वर, सबको डिकमीशन कर देगी, इंटायर डेटा सेंटर. और ये प्लेस अगर रेंट पे है तो उसको भी छोड़ सकती है. और अगर कंपनी का खुद का ये स्पेस है तो कंपनी किसी और पर्पस से उस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकती है. सो कहने का मतलब ये है कि जो भी डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट थी सर्वर को रखने की, मेंटेन करने की, वो सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया. अब इसके एम्प्लॉय कैसे एक्सेस करेंगे? जो नॉर्मल एम्प्लॉय है हमारे तुम्हारे जैसे, वो तो कंपनी आएंगे ना, वो कंपनी आएंगे, कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, तो एक्सेस कैसे करेंगे? सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में है. सो दे कैन एक्सेस द सर्वर थ्रू द VPN. They can access the server through the VPN. Now they have set up the VPN between Microsoft data center and to corporate network. डेटा सेंटर तो है नहीं, नेटवर्क है, कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ सेटअप करेंगे VPN, साइड टू साइड VPN. सो एंड यूजर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वर कहाँ पे है, उनको एक्सेस चाहिए. उसी तरह कस्टमर और क्लाइंट, हाउ दे कैन एक्सेस देयर वेब एप्लीकेशन और देयर वेब सर्वर, they can directly access through the internet. So all their customer or client, they can access their web server through the internet. पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, अभी भी ऐसे करेंगे. This is a cloud. So अगर एक लेमैन में सिंगल स्टेटमेंट, वन लाइन स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, so if all your compute resource available on a internet, then it is called a cloud, and that is the benefit. आप कहीं से भी अगर क्लाउड पे सर्वर है, आप घर से एक्सेस कर सकते हो, ऑफिस से एक्सेस कर सकते हो, यूएस चले जाओ वहां से एक्सेस कर लो, यूके चले जाओ वहां से एक्सेस कर लो, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है ना. ऑल कंप्यूट रिसोर्स का मतलब क्या है? सिर्फ VM नहीं, ऑल कंप्यूट रिसोर्स का मतलब है योर सर्वर, योर डेटाबेस, योर स्टोरेज, योर अदर एप्लीकेशंस, everything, your RAM, your CPU, everything, your routing, your firewall, everything available on the internet. It is called a cloud. In general life, everyone access the cloud service nowadays. आजकल हर कोई क्लाउड सर्विस एक्सेस कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं.
जीमेल पे आप अकाउंट बनाते हो, एक्सेस करते हो, वो क्या है? जीमेल इज ए क्लाउड सर्विस। यूट्यूब, फेसबुक, Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? ये सारा के सारा क्लाउड सर्विस है, लेकिन हमें पता नहीं है ना। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड। एक क्लाउड है पब्लिक क्लाउड। Public cloud means you can access through the internet. The cloud service like a VM, network, storage, you can access through the internet. That is called a public cloud and it is available for public. Anyone can. कल को अगर आपको लगता है कि एक स्टार्टअप बिजनेस रन करना चाहिए, 3 डेवलपर को हायर करो और एक क्लाउड सर्विस पे अकाउंट बनाओ और अपना खुद की कंपनी स्टार्ट कर लो। आपको ना डेटा सेंटर चाहिए, ना आपको स्पेस चाहिए, ना सर्वर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एवरीथिंग यू कैन यूज फ्रॉम द क्लाउड। सब कुछ क्लाउड के ऊपर है। सो क्लाउड बोलने का मतलब ये नहीं कि क्लाउड मतलब कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है या कुछ अनविजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्लाउड का मतलब है डेटा सेंटर जो कि मैनेज और दैट इज मैनेज बाय द क्लाउड वेंडर। डेटा सेंटर है जहां पे कंपनी अपना सर्वर प्लेस करती है, रखती है या सर्विस यूज करती है, और वो जो डेटा सेंटर है वो क्लाउड वेंडर मैनेज करता है। जैसे एज्योर के केस में माइक्रोसॉफ्ट, AWS के केस में Amazon, GCP के केस में गूगल, IBM का क्लाउड है, HP का क्लाउड है, TCS का भी क्लाउड है ना। So public cloud is available for public and it is access from internet. Example is Azure. Azure is a public cloud. AWS is a public cloud. GCP is a public cloud. GCP means Google Cloud. Now other types of cloud is a private cloud. दूसरा टाइप ऑफ क्लाउड है जिसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब प्राइवेट क्लाउड में क्या है? कंपनी का खुद का डेटा सेंटर है, कंपनी के पास डेटा सेंटर है, लेकिन कंपनी क्लाउड का फीचर यूज करना चाहती है, सर्विस यूज करना चाहती है। जैसे क्लाउड का फीचर है स्केलेबिलिटी, ऑटोमेटिकली आप इसको स्केल कर सकते हो, है ना। आप डाउनग्रेड कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, स्केलेबिलिटी है जो कि आप ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर में नहीं कर सकते। तो आप क्लाउड की सर्विस तो यूज करना चाहते हो, एडवांटेज तो लेना चाहते हो, लेकिन आप अपने डेटा को पब्लिक क्लाउड पे नहीं रखना चाहते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ऑल्दो सर तो एवरीथिंग इज मैनेज सिक्योर। कौन करता है इसको? प्राइवेट क्लाउड को जी कंपनी खुद मैनेज करेगी। अब प्राइवेट क्लाउड में क्या क्या है? प्राइवेट क्लाउड कौन कौन सा उदाहरण है प्राइवेट क्लाउड का? प्राइवेट क्लाउड का उदाहरण है एज्योर स्टैक। एज्योर स्टैक इज ए प्राइवेट क्लाउड। रैक स्पेस इज ए प्राइवेट क्लाउड। एचपी का है एचपी हीलियन, एचपी कंपनी का है एचपी हीलियन, इट इज ए प्राइवेट क्लाउड। टीसीएस का है प्राइवेट क्लाउड, जी का है जी प्रिडिक्स, वो प्राइवेट क्लाउड है। सो पहले आपको प्राइवेट क्लाउड का सॉफ्टवेयर परचेज करना है। ये सॉफ्टवेयर है, पैकेज के रूप में आएगा। जैसे आप ऑफिस का पैकेज आता है ना सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस का आता है, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज खरीदते हो या किसी अदर एप्लीकेशन का, उसको आपको इंस्टॉल करना अपने डेटा सेंटर में किसी VM के ऊपर, जो कि जिसके अंदर लाइक 64 GB का रैम हो, राइट, एंड 32 GB CPU हो, उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो प्राइवेट क्लाउड को और उसको यूज कर सकते हो विद इन द डेटा सेंटर। जो बैंकिंग सेक्टर है ज्यादातर वही प्राइवेट क्लाउड यूज करता है। जैसे सिटी बैंक है, HDFC बैंक है। क्यों? क्योंकि उनका डेटा बहुत सिक्योर है, सो दे डोंट वांट टू कीप देयर डेटा ऑन ए पब्लिक क्लाउड। इसलिए वो क्लाउड का फीचर तो यूज करना चाहते हैं लेकिन अपने ही सिक्योरिटी रीजन के अंदर, इसलिए वो प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेट क्लाउड इज कॉस्टली, प्राइवेट क्लाउड कॉस्टली है देन पब्लिक क्लाउड, क्योंकि पब्लिक क्लाउड शेयर्ड इंफ्रा यूज करता है, प्राइवेट क्लाउड शेयर्ड इंफ्रा यूज नहीं करता। अगर किसी कंपनी के पास प्राइवेट क्लाउड भी है और पब्लिक क्लाउड भी है और दोनों को उसने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, कनेक्टिविटी करी, तो दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड क्लाउड।
उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के बीच में कनेक्शन किया थ्रू द VPN, देन इट इज कॉल्ड ए हाइब्रिड क्लाउड। सर इनका कोई क्लियर है? एग्जांपल हाइब्रिड का? कोई एग्जांपल नहीं। कोई एग्जांपल? हाइब्रिड का मतलब क्या है? आपके पास एजोर भी है, आपके पास एजोर स्टैक भी है या रैक स्पेस है, दोनों को आपने VPN से साइड टू साइड VPN से जोड़ दिया, दैट इज ए प्राइवेट क्लाउड, है ना। जैसे मैंने प्राइवेट क्लाउड यहाँ पे इंस्टॉल किया ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर में, और जो मेरे पास पब्लिक है, दोनों को जोड़ दिया, ये भी एक तरह से हाइब्रिड क्लाउड ही है ना। दिस इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं है, कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है। सर एक क्लियर है सवाल, ना? हाँ पूछो। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने जो है अपना एडी को जो है वो अज्योर पे होस्ट किया है। तो वो मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, स्टिल इट इज स्टिल बीइंग मैनेज्ड फ्रॉम लोकल एडी। अपना जो आपका एडी यूजर्स एंड वो है आपका जो डेटा सेंटर से कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जो है आपका, तो मुझे उसका यूज समझ में नहीं आया कि यह क्या यूज क्या है, जब आप उसको वहां से कोई यूज नहीं कर रहे हो और एडी आपके क्लाउड पे होस्ट है और आपका डेटा सेंटर पे भी रन हो रहा है एडी, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है। सो हम लोग का टॉपिक ही है, उसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक ही है जी। लेकिन तुमने क्वेश्चन पूछा है तो मैं नहीं, अच्छी चीज है उस डिस्कस क्वेश्चन को करता हम स्किप कर सकते हैं सर, क्योंकि हम उसे बाद में इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हाँ नहीं, दिमाग कोई वाला नहीं, है हाइब्रिड कोई का। नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा है, ठीक है, कोई नहीं। देखो अगर कोई कंपनी है जो कि रन कर रही है, एबीसी कंपनी है, उसके पास ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर है, ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर में एक्टिव डायरेक्टरी एडी है, एडी के ऊपर करीब 500 यूजर हैं, 100 ग्रुप है, 5 एडी के ऊपर 500 यूजर्स हैं, है ना, जी एंड 100 ग्रुप्स है। 500 यूजर्स है और 100 ग्रुप है, मान लेते हैं। जी अब कंपनी जो है अजूर क्लाउड पे जाना चाहती है। सो अजूर क्लाउड पे जब आप जाओगे तो अजूर क्लाउड पे जो एप्लीकेशन है, अजूर क्लाउड पे कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है, जैसे वेब एप्लीकेशन है अजूर क्लाउड पे, या अजूर क्लाउड का पोर्टल है, या जी टीम्स है, या ऑफिस 365, ये सारे क्लाउड एप्लीकेशन जी है ना। अब ये सारा क्लाउड एप्लीकेशन को अगर आपको एक्सेस करना है तो यूजर नेम चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, जी लेकिन यूजर अकाउंट तो आपका ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में है। जी तो ओके उसके लिए अजूर पे अलग से आइडेंटिटी सर्विस है जिसको बोलते हैं अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। जी, मेक सेंस। So you have the Azure Active Directory, Azure AD on a Azure cloud. ओके लेकिन Azure Active Directory is different than Active Directory. This is your Windows Server Active Directory और ये Azure Active Directory है, ये दोनों अलग अलग सर्विस है। नाम उसका Active Directory है लेकिन सर्विस अलग है। ओके So या तो आप 500 यूजर यहाँ पे क्रिएट करो, जी है ना, और 100 ग्रुप्स बनाओ, तभी तो 500 यूजर जब उनको क्लाउड एप्लीकेशन एक्सेस करना होगा तो उस यूजर से एक्सेस करेंगे और Azure AD ऑथेंटिकेट करेगा। और जब जी ऑन प्रीमाइस का सर्वर एक्सेस करना होगा या एप्लीकेशन तो ऑन प्रीमाइस के यूजर अकाउंट से करेंगे। जी अब यहाँ पे एक तो एज ए एडमिन 500 यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अलग जी प्रॉब्लम है। मान लो तुमने बना भी दिया तो जो यूजर है उसको दो दो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जी ऑन प्रीमाइस में एक्सेस करना होगा तो अलग से यूजर नेम पासवर्ड, क्लाउड पे एक्सेस करना है तो अलग से यूजर नेम पासवर्ड। तो ये तो एक आजकल के यूजर बहुत स्मार्ट है, नहीं करना चाहते, थोड़ा भी जी होगा ना, नहीं करना चाहते। तो क्या करोगे, तो आप यूज करोगे डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन या हाइब्रिड एक्टिव डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं जी हाइब्रिड एडी जी एंड यूज बाय डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन, ठीक डायरेक्टरी सिंक, फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वी विल इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी टूल Azure AD Connect. ओके Azure AD Connect will install in a on premise, किसी भी मेंबर सर्वर के ऊपर Azure AD Connect हम इंस्टॉल करेंगे। बिन आप डायरेक्टली AD के ऊपर भी कर सकते हो, जी Azure AD
कनेक्ट टूल का नाम है Azure AD Connect, ये डायरेक्टरी सिंक टूल है जी नाउ आफ्टर देन ये Azure AD Connect क्या करेगा, जितने भी यूजर्स और ग्रुप है जो कि ऑन प्रीमाइस में है वो सारे यूजर्स और ग्रुप को माइग्रेट कर देगा, मतलब इसको लेके जाएगा Azure एक्टिव डायरेक्टरी में। तो सारे ओके यूजर जो यहाँ पे है वो सारा का सारा यूजर यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्रिएट यहाँ पे सारे के सारे यूजर्स विद देयर सेम नेम एंड द पासवर्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई यूजर है R1, ठीक है, जी और उसका पासवर्ड है 123। सो ये R1 यहाँ भी रहेगा और ये R1 यहाँ ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा R1 यूजर अकाउंट उसको और बेसिकली उसका रेप्लिकेट पासवर्ड भी करना होगा। होगा। हाँ, रेप्लिकेट ही करता है उसको, जी सिंक करता है उसको, तो जी उसका भी पासवर्ड 123 होगा। अब यूजर को एक ही नाम एक्सेस करना है, जी यहाँ भी अगर एक्सेस करेगा तो इसी R1 यूजर से 123 पासवर्ड, क्लाउड एप्लीकेशन भी एक्सेस करेगा तो वही यूजर नेम वही पासवर्ड, जी है ना। और अगर बाय द वे इसने पासवर्ड चेंज किया तो जो नया पासवर्ड है वो सिंक हो जाएगा Azure AD के साथ। 123 से अगर 321 चेंज किया तो यहाँ भी 321 आ जाएगा। सो ये क्या देता है कि ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देता है, ईज ऑफ मैनेजमेंट देता है ना। ओके इट मेक सेंस नाउ, ताकि जो आपके ओ, क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशंस हैं, टीम्स हो गया या आपका वन ड्राइव हो गया, ये 365 है, उसके लिए हमें अलग से अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। वो आपके लोकल एडी के अकाउंट करेक्ट रेप्लिकेट करेगा Azure AD में, और वो अकाउंट से आप सेम यूजर आईडी पासवर्ड से आप कनेक्ट कर सकते यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके थैंक्स अ लॉट यहाँ सर। पे मैं जी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, ये Azure पोर्टल है मेरा। जी Azure पोर्टल में ये Azure एक्टिव डायरेक्टरी है जो कि क्लाउड एप्लीकेशन आइडेंटिटी है, और यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यूजर्स एंड ग्रुप मिलेगा। अब यहाँ पे दो तरह का यूजर आपको दिखेगा, एक यूजर यहाँ ऑन प्रीमाइस दिख रहा है, ऑन प्रीमाइस सिंक्रोनाइजेशन सिंक इनेबल, है ना। जी तो ये ऑन प्रीमाइस सिंक में नो और यहाँ पे यस, क्या अंतर है दोनों में? इसका मतलब है ये जो यूजर अकाउंट है इसको डायरेक्टली मैंने Azure AD में बनाया है, ये डायरेक्टली Azure AD का यूजर है। और ये जो एस दिख रहा है इसका मतलब ये ऑन प्रीमाइस में बनाया है, वहां से ये सिंक होके यहाँ पे आ रहा है। ओके तो ये डायरेक्टली क्लाउड पे नहीं बना, ये कहाँ बना है? ऑन प्रीमाइस में। ऑन प्रीमिस बना और ये सिंक कैसे हुआ है? Azure AD कनेक्ट के थ्रू। कनेक्ट। Azure AD कनेक्ट से हम इसको सिंक करते हैं। अभी तो ये थोड़ा दिखाएगा या क्योंकि हो गया, 2-3 क्लास में हमने कराया था, मोर देन 1 डेज अगो, एक जी दिन पहले से का सिंक्रोनाइजेशन है। तो डायरेक्टली ये सिंक चलता रहता है, नया यूजर अकाउंट बनाओगे वो तुरंत सिंक हो जाएगा। 30 जी मिनट का टाइम होता है डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन। ओके। क्लियर है? अब मैनुअल ओके, सिंक का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है सर? हाँ हाँ, मैनुअली आप सिंक कर सकते हो। ठीक है सर, हम जब डिस्कस करेंगे जब हम इसको यूनिट को पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक्स अ नाउ ओके, थैंक यू। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस। 3 तरह का क्लाउड मैंने बताया, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड। 3 तरह का क्लाउड सर्विस होता है। One is called infrastructure as a service, another is called platform as a service, and third one is called software as a service. So first is called infrastructure as a service, second is platform as a service, and third one is called software as a service. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का मतलब है कि आपने नेटवर्क बनाया एंड वीएम बनाया, वीएम के अंदर यू हैव टू इंस्टॉल योर एप्लीकेशन, मतलब वर्चुअल मशीन भी आपने बनाया, सर्वर भी आपका है, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो भी आपका है, दोनों आप मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। वीएम का पैचिंग करोगे, वीएम की सिक्योरिटी करोगे, एप्लीकेशन का करोगे, सब कुछ, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है कि डायरेक्टली यू डिप्लॉय द योर एप्लीकेशन, डायरेक्टली आप वेबसाइट या SQL डाटाबेस आपने बना दिया, लेकिन हवा में तो बनेगा नहीं, पीछे कोई ना कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना। तो जो सर्वर है इसके पीछे, वो जो सर्वर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। इवन कि आप उस सर्वर को देख भी नहीं सकते, कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये जो सर्वर है ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा,
लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आपका है, उसको आप मैनेज करोगे, एप्लीकेशन को आप कंट्रोल करोगे, उसकी सिक्योरिटी आप मेंटेन करोगे, सब कुछ। सो इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जैसे कि सर्वर है, और उस प्लेटफॉर्म पे आपने अपना एप्लीकेशन होस्ट किया, दैट इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जैसे godaddy.com आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, वहां पे आप अपना वेबसाइट होस्ट करते हो। सिमिलर नाउ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा। वीएम भी माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, एप्लीकेशन भी माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा, हम लोग सिर्फ एक्सेस करते हैं। सो एवरीथिंग इज टेकिंग केयर बाय द माइक्रोसॉफ्ट। वीएम, एप्लीकेशन, एवरीथिंग इज taken care by the Microsoft. Example is Office 365. Office 365 is a kind of SaaS service. Gmail is a kind of SaaS service. अब Gmail में क्या करते हैं, मेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि सर्वर ये विंडोज का सर्वर के ऊपर क्रिएट हो रहा है या लिनक्स के ऊपर हो रहा है। हमें ये भी नहीं पता होता है कि किस इंडिया में हो रहा है या इंडिया के बाहर हो रहा है। हमें ये भी नहीं पता होता है कि आखिर वो कौन सा मेल सर्वर यूज कर रहा है, एक्सचेंज सर्वर है या लोटस नोट है या कोई और है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सर्विस एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली ऑफिस 365। तो अगर जनरल लाइफ में देखा जाए तो जैसे अमेजोन है या तुम्हारा नेटफ्लिक्स है, ये तो हम लोग सिर्फ सर्विस एक्सेस करते हैं। इंटरनेट एज ए सर्विस एक्सेस करते हैं। हम तो कभी ये पूछते नहीं एयरटेल और जियो से कि भाई तुमने टावर कहाँ लगा रखा है या कौन मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है। हम सिर्फ सर्विस लेते हैं, प्लान लेते हैं, सर्विस लेते हैं और उसी सर्विस का पैसा देते हैं। सो सिमिलरली आप अगर सिर्फ सर्विस एक्सेस करते हो तो सर्विस का पैसा दोगे, अगर आप प्लेटफॉर्म एक्सेस करोगे तो उसका पैसा दोगे, अगर आप पूरा इंफ्रा यूज कर रहे हो तो उसका पैसा दोगे। तो अब आप मुझे बताओ कि इस तीनों में सबसे कॉस्टली कौन सा होगा? क्वेश्चन है, सैस आप सैस सब होना बोलिए। चाहिए। SaaS होगा सर, SaaS। So SaaS infra, होगा। सब इंफ्रा कुछ सबसे कॉस्टली इंफ्रा होगा ना? इंफ्रा होगा ना, क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां अपने वीएम होस्ट कर करेक्ट। रहे हैं, उनका स्टोरेज भी आप यूज कर रहे हैं, उनका नेटवर्किंग भी यूज कर रहे हैं, तो इंफ्रा। सबसे कॉस्टली इंफ्रा होगा। अब मैं दूसरे अच्छा ढंग से समझाता हूँ। मैं अभी एक पिज्जा ऑर्डर करता हूँ, हार्डली मुझे 150 से 200 रुपये लगेंगे। मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगा, वो आ जाएगा, मैं खा लूंगा। सो वो जो पिज्जा है, पिज्जा एज ए सर्विस, वो है पिज्जा एज ए सर्विस। अब इसी चीज को मैं रेंट पे लेता हूँ। एक रेंट पे लिया किचन, वहां मैंने पिज्जा बनाया और उस पिज्जा का मैं ओनर हो सकता हूँ क्योंकि पिज्जा मैंने बनाया है। किचन मैंने रेंट पे लिया है, पिज्जा मैंने बनाया, उसका ओनर मैं हूँ। पिज्जा को मैं खाऊं या मैं सेल कर दूं, मेरी मर्जी, लेकिन आई एम द ओनर ऑफ दैट पिज्जा। लेकिन किचन का मैं ओनर नहीं हूँ, उसका मुझे रेंट देना पड़ेगा। जब मैं किचन का रेंट दूंगा तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरी जगह मैं पिज्जा तब भी मैं खा रहा था, लेकिन मैं सिर्फ सर्विस का पैसा दे रहा था, पिज्जा एज ए सर्विस का। मैं किचन का पैसा नहीं दे रहा था उसका, है ना? तो यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहाँ पे मैं किचन रेंट पे ले रहा हूँ, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अब जिसे वो सेंस में सोचो कि मैं पूरा का पूरा बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, पूरा का पूरा बिल्डिंग ही मैंने ले लिया। अब उसमें मैं किचन बनाऊं या ड्राइंग हॉल बनाऊं, कुछ भी करूं, लेट्स सपोज मैंने किचन बनाया, तो वो भी मेरा पूरा का पूरा मेरा ही है। उसमें मैं पिज्जा बना के मैं सेल कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी कॉस्ट, जहां मैं रेंट पे ले रहा था वहां मैं पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने परचेज किया, तो कॉस्ट तो बढ़ गई। अब बताओ इस तीनों में तुम कौन सा तुम्हें कॉस्टली लगता है? जहां तुमने पिज्जा ऑर्डर किया 200 रुपये में खा लिया, और वहां पे अगर तुम रेंट पे लोगे किचन फिर बनाने जाओगे, वो ज्यादा कॉस्टली होगा ना? सो ये जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इससे ज्यादा कॉस्टली है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से ज्यादा कॉस्टली है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। सबसे ज्यादा कॉस्टली है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। क्लियर हो गया? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ओके है और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। अब ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे होगा? अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, कंट्रोल जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा होगा, क्योंकि जी। इंफ्रा मेरा है, एप्लीकेशन मेरा है, सो आई हैव ए फुल कंट्रोल।
प्लेटफॉर्म में पार्शियल कंट्रोल होगा, सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल है, इंफ्रा पे नहीं है। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर कंपनी को फुल कंट्रोल चाहिए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पे जाएगी। अगर कंपनी को पैसे बचाना है, पार्शियल कंट्रोल चाहिए, तो सॉफ्टवेयर तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे जाएगी। और अगर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मेंटेन नहीं करना है, कुछ कंट्रोल नहीं करना है, तो और पैसे भी बचाने, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे जाएगी। क्लियर है? यस ओके। नाउ क्लाउड पे खूबसूरती यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर्ड होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर्ड होती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड वेंडर की होती है। तो तुम सब लोगों ने पढ़ा है ओएसआई लेयर, क्योंकि सब लोग नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है, तो मैं ये आशा रखता हूँ कि सबको ओएसआई लेयर पता होगा। तो ओएसआई लेयर की अगर बात करो तो जो नीचे का लेयर है वो तुम्हारा लेयर होता है फिजिकल लेयर, है ना? जी फिजिकल लेयर होता है ना जहाँ केबलिंग करते हैं। यस सर। सो फिजिकल लेयर जो है वो क्लाउड वेंडर मैनेज करता है हमेशा, ये क्लाउड वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर भी क्लाउड वेंडर ही मैनेज करता है। उसके ऊपर नेटवर्क लेयर, ये भी क्लाउड वेंडर ही मैनेज करेगा। तुम कहाँ से मैनेज करोगे? कस्टमर कहाँ से मैनेज करेगा? वो मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो होगा वो मैनेज करेगा क्लाउड वेंडर। सो यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम्हें किसी वीएम में प्रॉब्लम आ रहा है या किसी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेटेंसी आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, सो एक लेवल तक जाके तुम ट्रबल शूट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे तो आपको एक्सेस ही नहीं है। सो यू हैव टू ओपन ए टिकट, तब आपको टिकट ओपन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से, इस केस में AWS केस में अमेजोन से, और वो साथ में मिलके काम करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। सो ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ अगर मैं डेटा सेंटर की बात करूं कि ये डेटा सेंटर है, क्लाउड कुछ नहीं है, डेटा सेंटर है, तो कहाँ पे है? एज्योर का डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में चेन्नई में है। एक डेटा सेंटर चेन्नई में है, एक डेटा सेंटर पुणे में है, एक डेटा सेंटर था मुंबई में जो कि डिकमीशन हो गया, एक डेटा सेंटर नया ओपन हो रहा है हैदराबाद में, अभी वो बन रहा है, और मे बी नेक्स्ट ईयर इट विल बी बेसिकली अवेलेबल। सो आप मान के चलो 2 डेटा सेंटर अभी ऑपरेशनल है, एक डेटा सेंटर बन रहा है, एक डेटा सेंटर था जो अब नहीं है, डिकमीशन हो गया। इंडिया से बाहर कहाँ डेटा सेंटर है? सब जगह है, मोर देन 150 डेटा सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस में है, यूके में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अगर आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ डेटा सेंटर है एज़्योर का, वेरी सिंपल, यू कैन check it now. Azure data center location. और सारे डेटा सेंटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द फाइबर केबल। सारे डेटा सेंटर हैव द बेस्ट कूलिंग सिस्टम, बेस्ट पावर सप्लाई। सो दीज आर द डेटा सेंटर। इंडिया में पुणे 2015 में स्टार्ट हुआ है, जिसको हम सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, और साउथ इंडिया में चेन्नई में, ये भी 2015 में स्टार्ट हुआ है, और एक जो है वो हैदराबाद में स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, कमिंग सून, मतलब ये बन रहा है। इसी तरह अगर आपको ऑस्ट्रेलिया देखना है, ऑस्ट्रेलिया में 3 डेटा सेंटर है, 3 जगह है डेटा सेंटर, 3 रीजन में है। एशिया पैसिफिक में, ईस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, चाइना में जितने सारे लोकेशन पे है, चाइना में। यूएस में देखना है, यू कैन यूएस हैव द मल्टीपल डेटा सेंटर, सेंट्रल यूएस, ईस्ट वेस्ट 2, ये सारे डेटा सेंटर लोकेशन है। सो जब भी आप क्लाउड पे क्रिएट करोगे कोई भी चीज, तो लोकेशन आपको चूज करना पड़ेगा, रीजन चूज करना पड़ेगा, किस रीजन में आप बना रहे हो सर्विस को। सो अजोर की आर्किटेक्चर की जो बात करूं मैं, अगर अजोर की आर्किटेक्चर की बात करता हूं, सो
उसके एक पहले सवाल था। अकाउंट के बाद, हाँ पूछो ना। जैसे हम कोई रिसोर्स हम क्रिएट करते हैं और हमने गलती से अगर कोई लोकेशन उसकी सेलेक्ट कर ली है, तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है बाद में? चेंज नहीं कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट कर सकते हो, लोकेशन चेंज नहीं होता, ठीक है सर, है ना। थैंक यू। जी जी जी, अंडरस्टूड। सो नाउ हाउ यू कैन यूज द अजूर क्लाउड, तो उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो ईमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी, जैसे आउटलुक हो गया या हॉटमेल हो गया, या जीमेल भी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पे कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो भी यूज कर सकते हो। तो मान लो कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो abc.xyz@outlook.com, दिस इज माय ईमेल आईडी। तो जब मैं क्रिएट करूंगा अकाउंट एजोर के ऊपर, एजोर क्लाउड के ऊपर, दिस इज एजोर क्लाउड। So very beginning Microsoft will create one directory service for me. Automatically Microsoft एक directory service बनाएगा Azure AD के अंदर। Azure AD के अंदर automatically एक directory service create करेगा और उस directory service का नाम होगा default directory। Default क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा डिफॉल्ट बनाया जाता है ऑटोमेटिक, इसलिए इसको बोलते हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी। और एक डोमेन भी क्रिएट कर देगा मेरे लिए, और डोमेन का जो नाम होगा वो मेरे ईमेल आईडी के नाम पे बेसिस होगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी है abc.xyz@outlook.com, तो जो डोमेन बनेगा उसका होगा नाम abc.will-remove xyz@outlook.onmicrosoft.com, ये नाम का डोमेन बनाएगा, और मेरा जो ईमेल आईडी है वो इसी डोमेन में क्रिएटेड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा abc.xyz@outlook.com। इसके बाद चूंकि मैंने अकाउंट बनाया है एजूर का, तो आई एम द अकाउंट एडमिन और मेरे पास फुल परमिशन होगा। मैं दूसरे एम्प्लॉय और दूसरे एडमिन का अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं, दूसरे यूजर का, यूजर 1, यूजर 2, मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूं। सो दिस इज योर यूजर मैनेजमेंट सर्विस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूजर मैनेजमेंट सर्विस। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो आपका है दैट इज ए यूजर मैनेजमेंट सर्विस या आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस। आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस। लेकिन अगर आपको नेटवर्क बनाना है, वीएम बनाना है, स्टोरेज बनाना है, तो एडी में नहीं बनेगा, वो बनेगा सब्सक्रिप्शन के अंदर। सो यू हैव अनदर सर्विस जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन, जिसको बोलते हैं Azure सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन इज ए रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस। जैसे अगर आपको Amazon प्राइम का वीडियो देखना है तो पहले तो आपके नाम का अकाउंट बनाएगा Amazon प्राइम वाला, फिर आपको बोलेगा सब्सक्रिप्शन परचेज करो 1 साल का या 1 महीने का। सबका प्लान अलग अलग होगा, सबका कॉस्ट अलग अलग होगा। उसी तरह अकाउंट बनाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, और सब्सक्रिप्शन का प्लान अलग अलग होता है, कॉस्टिंग भी अलग अलग होती है ना। और सब्सक्रिप्शन के अंदर यू कैन क्रिएट योर रिसोर्स। सो एज्योर पे कुछ भी बनाओगे उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, और सब्सक्रिप्शन इज ए रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस। सब्सक्रिप्शन इज ए रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस। यू कैन क्रिएट मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। क्लियर है ना? सब्सक्रिप्शन के अंदर भी डायरेक्टली आप रिसोर्स नहीं बना सकते, आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या बनेगा? रिसोर्स ग्रुप। So this is your Azure architecture. अब रिसोर्स ग्रुप क्या है? रिसोर्स ग्रुप इज नथिंग बट ए कंटेनर, एक लॉजिकल ग्रुप है, लॉजिकल कंटेनर है। जैसे कितने लोग एडी पे काम करते हैं? जो एडी पे काम करते हैं उनको पता होगा ओयू के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बारे में। जी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर यूजर्स एंड ग्रुप को रखते हैं। सो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप एक कंटेनर है जिसमें आप
VM, नेटवर्क, स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी क्रिएट करना तो आपको चाहिए एक रिसोर्स ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप क्यों बनाते हैं और उसकी प्लानिंग क्या होती है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, या एक रिसोर्स ग्रुप बनाया विंडोज VM के लिए, एक रिसोर्स ग्रुप बनाया मैंने लिनक्स VM के लिए, है ना। सो दिस इज योर बेसिकली रिसोर्स ग्रुप। और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो लिंक होता है एज़्योर AD के साथ। अब ये चीज मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये मैंने दिखाया एज़्योर AD। एज़्योर AD में यूजर्स एंड ग्रुप है। मेरा जो एज़्योर AD है उसका नाम है डिफॉल्ट डायरेक्टरी। मैंने बताया जैसे क्रिएट करोगे एक डायरेक्टरी बनेगा डिफॉल्ट डायरेक्टरी, और एक डोमेन बनेगा जो कि तुम्हारे ईमेल आईडी पे होगा। तो मेरा जो ईमेल आईडी हो AJTR22@outlook.com है। तो मेरा जो डोमेन होगा वो होगा AJTR22outlook.onmicrosoft.com। लाइसेंस अभी फ्री है, डिफरेंट लाइसेंस है AD में। AD फ्री लाइसेंस है, बेसिक है, प्रीमियम 1 है, प्रीमियम 2 है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। नाउ we also have a subscription. So subscription is my resource management. मेरा सब्सक्रिप्शन का नाम है एज़्योर सब्सक्रिप्शन। दिस इज ID और मेरा रोल अकाउंट एडमिन एंड दिस इज द करंट कॉस्ट जो मैंने अभी तक यूज किया है, वो कॉस्ट मुझे बताएगा। और जब भी मैं कुछ क्रिएट करूंगा, जैसे आप लोग अभी नेटवर्क के हो तो नेटवर्क मैं क्रिएट करके दिखाता हूं आपको। नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क, एक नेटवर्क मेरे पास ऑलरेडी है, एक मैं क्रिएट कर रहा हूं। सो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन बताना पड़ेगा, किस सब्सक्रिप्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हो। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, एक प्रोडक्शन के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, एक टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर रिसोर्स ग्रुप। सो रिसोर्स ग्रुप अगर पहले से बना हुआ डिपार्टमेंट का तो आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नया बनाना तो नया बना सकते हो। मैं एक नया बना देता हूँ, नेटवर्क डेमो RG। नेम, इसका नाम मैं डाल देता हूँ VNet 1। और किस डेटा सेंटर में बनाना है, तो दीज आर द डिफरेंट डेटा सेंटर जो मैंने आपको दिखाया अभी कि अलग अलग डेटा सेंटर है ना। तो किस डेटा सेंटर बनाना ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि आपका बिजनेस किस लोकेशन में है, इंडिया में है, US में है, सिंगापुर में है, चाइना में। टेस्टिंग के लिए तो आप कहीं भी बना सकते हो, जैसे मैं ईस्ट एशिया में बना देता हूँ, या साउथ इंडिया में बनाता है, या सेंट्रल इंडिया में। डेमो के लिए आप कहीं बना सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन में कंपनी में जहाँ पे बिजनेस होता है उसके नियर बाय बनाते हैं। देन IP एड्रेस, अगर नेटवर्क है तो IP एड्रेस रेंज होगा। सो यहाँ पे एक IP एड्रेस रेंज बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट मुझे दे रहा है। आई कैन यूज द सेम, मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ, या आई विल यूज माई ओन। तो मैं अपना खुद का यूज कर रहा हूँ 192.168.168.0.0/16। सो /16 का मतलब कितने IP हो गया, टोटल 65,536 IP। और इसके अंदर मैं सबनेट क्रिएट करूंगा, मल्टीपल सबनेट। तो एक सबनेट में बना रहा हूँ, सबनेट 1, और उसको मैं दे रहा हूँ 192.168.0.0/24। I will add another subnet also, subnet 2, 192.168। सबनेटिंग तो पता नहीं सबको, नहीं पता तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Add. And then security. So we can use the bash host or DDoS protection, firewall. So अभी ये डिसेबल है, इसको डिसेबल ही रखते हैं। जब क्लास करेंगे तो फायरवॉल का करेंगे, तो फायरवॉल क्रिएट करेंगे और बैश होस्ट बताएंगे वो सब। Then you can do the review and create. So it's very easy on a cloud, जो कि पहली बार देख रहे हैं उनके लिए 1 मिनट के अंदर मैंने नेटवर्क बनाया। उस नेटवर्क में IP एड्रेस है 65,536 IP। सारे IP यूजेबल तो नहीं है, लेकिन अवेलेबल IP 65,536 है। और मैंने 2 सबनेट बना दिया। एक सबनेट में मैं एक प्रोजेक्ट का सर्वर रख सकता हूँ, दूसरे सबनेट में दूसरे प्रोजेक्ट का सर्वर मैं रख सकता हूँ, और ये बन जाएगा विद इन द मिनट, ये बन जाएगा नेटवर्क मेरा।
सो अभी जो मैंने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन देना होगा, फिर रिसोर्स ग्रुप का नाम, उसके बाद नेटवर्क। सेम आर्किटेक्चर मैंने फॉलो किया बनाने में। तो दिस इज योर virtual network. This is your address space, and within that you have the subnet. You can create another subnet further also, and these are basically other services like a firewall, peering. You can use a firewall or peering, right? अब हम आते हैं कि क्लास कैसे करेंगे। सो क्लास में हम लोग पीपीटी यूज करेंगे फॉर डिस्कशन। पीपीटी जैसे कि पावर पॉइंट, so like this is the PPT. So this type of PPT will use in a class. So this is your Azure Active Directory PPT. Azure Active Directory is basically come under your security and management because it give you authentication service. It also come under the hybrid cloud because you can connect your on-premise Active Directory to Azure AD. So Azure Active Directory is a multi-cloud or multi-tenant cloud-based directory service. It provides you single sign-on. You can also integrate your on-premise server Active Directory to Azure AD. So this is your Azure Active Directory, and ये a single directory service है for all cloud application like Office 365 or Teams or others. आपके पास अगर on-premise में Active Directory, you can also connect your on-premise Active Directory to Azure AD. You can also connect your mobile device or Windows 10 device with Azure Active Directory. So this is the same is the benefit also. There is some difference between Azure AD and Azure Active Directory. जो ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी है जिसको हम विंडोज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, उसमें जो ऑथेंटिकेशन होता है वो कर्बरोस के थ्रू होता है। कर्बरोस इज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट 88 पे काम करता है। लेकिन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं ऑथ फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में आपके पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है, ग्रुप पॉलिसी होता है। एज्योर एडी में ये चीज नहीं होती। ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी फुल फ्लैश डायरेक्टरी सर्विस है, जबकि Azure Active Directory लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस है और ये फ्लैट आर्किटेक्चर है इसका, सिर्फ यूजर्स एंड ग्रुप, दैट्स इट। So these are the few difference here. We will discuss in detail later on. These are the few component of Active Directory. So मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हम लोग क्लास कैसे करेंगे। So क्लास में हम इस टाइप का PPT यूज करेंगे फॉर द थ्योरी डिस्कशन, और उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग भी करेंगे। डिजाइनिंग जैसे कि ये सब डिजाइन मैंने पहले बताया है पहले की क्लास में। तो डिजाइनिंग का मतलब यह है कि जैसे जो एक्टिव डायरेक्टरी की डिजाइनिंग मैंने बताया आपको एग्जांपल में, कहाँ गया, इस पे नहीं बताया, किसी ने कुछ ने पूछा, ये वाली। सो इस टाइप का डिजाइनिंग करेंगे ताकि एंड टू एंड समझ में आए, कहाँ से शुरू किया कहाँ पे खत्म किया। सो थ्योरी प्लस डिजाइनिंग या आर्किटेक्चर, और उसके बाद फिर पोर्टल पे जाके लैब करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, जैसे यूबीएम बनाना, यूजर बनाना, फायरवॉल लगाना, दो नेटवर्क में कनेक्ट करना, वीपीएन सेटअप करना, ये सारा कुछ। देन आफ्टर आई विल आल्सो गिव यू, पहले मैं लैब कर दूंगा, उसके बाद फिर आपको लैब करना होगा, और क्लास के बाद मैं आपको लैब डॉक्यूमेंट दूंगा। लैब डॉक्यूमेंट कैसा होगा, तो दिस इज योर लैब डॉक्यूमेंट। जैसे ये फायरवॉल का लैब है, सो ये मैं आपको दूंगा लैब डॉक्यूमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको खुद को करने के लिए ये मैं दूंगा ताकि आप इसको कर सको प्रैक्टिस। लॉगिन करो, अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो, रिसोर्स ग्रुप बनाओ, नेटवर्क बनाओ, फॉलो करते जाओ। अगर कुछ दिक्कत है तो मैं तो लैब करके दिखाया ही, आप उसको देख लो या मुझसे पूछ लो। तो बेसिकली दिस इज माय ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी।
और बहुत ही सिंपल है, अगर आप फॉलो करोगे तो कोई इशू नहीं है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो, एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई और कुछ क्वेश्चन यस पूछना है? सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ, जैसे मैं करियर स्विच करना चाहता हूँ इसमें क्लाउड में, तो अभी क्या मतलब क्या देंगे एज अ फ्रेशर वो लोग, क्या है मतलब पैकेज? फ्रेशर का देखो 4 लाख 5 लाख का पैकेज है फ्रेशर के लिए, डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हो, अच्छा, है ना। नहीं एज अ फ्रेशर तो नहीं हूँ मैं, तो एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन एक तरह से एज्यूर तो न्यू ही होगा ना अपने लिए, नहीं तो नहीं, ना कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? अराउंड 10 इयर्स हो गया अब। हाँ 10 ईयर है। और हम्म। किस पे काम कर रहे हो आप, कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? एक्चुअली सर मैंने काम किया बिल्कुल डिफरेंट पे, मैंने किया है एयरबस का एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर, ओके और ओके, ये आईटी का एक्सपीरियंस वायरलेस नहीं है, सिस्टम। आईटी का एक्सपीरियंस, हाँ मतलब एक तरह आईटी से में एक्सपीरियंस नहीं पहले है। था, मतलब हम्म 1-2 साल का था उसमें, आईएसपी के अंदर हम्म एमपीएल वो सब किया था, लेकिन ये कि वो काफी टाइम हो गया, अब अनटच हो गया एक तरह से, अब बिल्कुल ही हम्म। अलग फील्ड में आ गया था मैं, तो अब मैं चाहता हूँ अपना स्विच करके दोबारा इधर आना। हाँ तो नहीं, तो आपका जो करंट पैकेज है आप कम से कम हम्म, उसको नेगोशिएट कर हम्म, सकते हो, वो आप मांग सकते हो। अच्छा करंट पैकेज हम्म। पर, चलिए। अच्छा, और ये इसमें फ्रीलांसिंग भी हो सकती है सर, क्या है वैसे ही बस मतलब जॉब ही करनी नहीं पड़ेगी? नहीं, फ्रीलांसिंग तो बिल्कुल कर सकते हो, सीखने के बाद आप ट्रेनिंग दे हम्म। सकते हो एज ए फ्रीलांसर, सीखने के बाद आप सपोर्ट दे सकते हो एज ए फ्रीलांसर, हाँ कंपनी वही का सपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट ले रिलेटेड मैं सकते पूछना हो। चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, ये तो ऑप्शनल, फ्रीलांसर तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लीजिए अभी आप ये पहला कोर्स मतलब करा रहे हैं, जैसे सीसीएनए इसमें होता है, नेटवर्किंग में सीसीएनए सीसीएनबी सीसीआईई टाइप तक, आगे हम्म तक और भी, तो इसमें कहाँ तक हम्म। है, मतलब कितने सर्टिफिकेशंस हैं इसमें? गुड, गुड क्वेश्चन। गिव मी एक मिनट में ड्रॉ करता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। हम्म, सो एजोर का एक कोर्स है एजोर फंडामेंटल, हम्म, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया फॉन्ट। सो एजोर फंडामेंटल, ठीक है ना। एजोर फंडामेंटल जो है बहुत ही बेसिक है, हम्म, और ये मैं रिकमेंड नहीं करता, ये सिर्फ मैनेजर वगैरह के कि ओवरव्यू, ऊपर से ओवरव्यू लेना है तो फंडामेंटल, लेकिन मैं किसी को ठीक। सपोर्ट नहीं करता ये करने के लिए। ठीक है, हम्म, देन आपके पास है एजोर एडमिन, देन यू हैव एजोर डेवलपर। So Azure admin is AZ104, right sir? करेक्ट। सो एजोर फंडामेंटल जो है वो AZ 900 है, एजोर एडमिन जो है AZ 104 है, एजोर डेवलपर AZ 204 है, एंड दिस इज योर एजोर आर्किटेक्ट। एजोर आर्किटेक्ट जो है वो है AZ 305। देन यू हैव एजोर नेटवर्क, बेसिकली नेटवर्क स्पेशलिस्ट इसको बोलते हैं, एजोर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, और ये होता है AZ 700। इसके अलावा भी ये सर्टिफिकेशन जैसे सिक्योरिटी है, एजोर सिक्योरिटी AZ 500, एक और है एजोर डेवऑप्स, लेकिन वो आप लोग के लिए नहीं है, ज़्यादातर एजोर डेवऑप्स AZ से 400। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एजोर एडमिन, इसको तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कभी किसी को, आप स्टार्ट कर सकते हो एजोर एडमिन से, क्योंकि ये पूरा पैकेज है, इसके अंदर सब कुछ है, लैब है, थ्योरी है, सब कुछ है, जो कि एक जॉब एज ए एजोर एडमिन जॉब करने के लिए आपको चाहिए।
आफ्टर देन यू कैन अपग्रेड टू एजोर आर्किटेक्ट। जॉब में भी जब आप काम करोगे तो पहले आप एजोर एडमिन होगे, बाद में 3-4 साल के बाद आपको एजोर आर्किटेक्ट के रूप में आप काम करोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो एजोर आर्किटेक्ट के साथ साथ आप एजोर सिक्योरिटी कर सकते हो, एजोर 500 जैसे, क्योंकि सिक्योरिटी का आजकल डिमांड है तो आप एजोर सिक्योरिटी भी कर सकते हो। बाकी एजोर डेवलपर के लिए, कोई डेवलपर है, कोई कोडर है, उसके लिए है, और इसके बाद एजोर डेवऑप्स कर सकता है वो। नेटवर्क के लिए तो आप लोगों के लिए ये और ये 4 सर्टिफिकेट है। तो पाथ आपका होगा एजोर एडमिन, आप आफ्टर देन एजोर आर्किटेक्ट और एजोर सिक्योरिटी। नेटवर्क तो इसी में आप सीख जाओगे, एजोर एडमिन में सब सारा नेटवर्क है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, क्लियर है? ठीक ठीक। तो सर इसमें जनरली सर पैकेज क्या है एज्योर एडमिन का? एजोर एडमिन का पैकेज कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स पैकेज है। जो भी आपका पैकेज है उस पे 100% तक आप नेगोशिएट कर सकते हो। अच्छा, तो फ्रेशर मतलब के लिए डबल। कितना होता है वैसे? फ्रेशर के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंड करता है आप कैसा इंटरव्यू आपका जाता है, किस कंपनी में होता है ना। नेगोशिएट तो चलो एक्सपीरियंस बंदा कर लेगा, भाई मैं इतना लूंगा, तुम इतनी, तो और कंपनी खड़ी है। फ्रेशर बेचारा क्या करे, वो कहेगा अभी तो तुम्हें काम नहीं आता, तुम इतने पैसे मांग रहे हो। तो बस वो सही है ना, फ्रेशर को तो सीखने की जरूरत है ना। एक साल सीख लेता है खुद ही, फिर वो कहता भाई हमें पैसा बढ़ाओ ना, तो मैं तो जा रहा हूँ दूसरी जगह, है ना। क्या पूछना था भूल गया मैं, क्या? अच्छा हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सर अभी भी यहाँ पर जैसे मेरा 1 साल का भी और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कितने कितने मंथ का है आपका ये वाला कोर्स ये जो आप बता कोर्स रहे हैं एडमिन? तुम्हारा 30 मंथ का नहीं है, 30-40 आवर्स है, 32 घंटे से लेके 40 घंटे। क्यों 32 से 40? डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, मतलब जो स्टूडेंट है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कितना पेस है सीखने का, कैसा लर्निंग है, तो 32 घंटे से 40 घंटे को लेके चलता हूँ मैं। और यही माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है। तो सर ये 32 महीने के 1 महीने के आसपास मान के चले। 1 से 1.5 महीने मान लो। तो पर डे हम सर कितने घंटे की क्लास करेंगे? 1 आवर? मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा। तो टाइमिंग्स? टाइमिंग तुम लोग बताओ। सर अगर मॉर्निंग की हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि मसला ये है कि 7 o'clock मतलब यहाँ पर ना हमारी नमाज होती है, तो नमाज के लिए जाना होता है, तो इसलिए उसमें 7:30 पौने 8 बजे तो ये टाइम सही है तुम लोगों के लिए? या तो 8 बजे से शुरू कर दें, 8 बजे से, मतलब 8 बजे शाम से ना? मतलब ना, सॉरी इंडिया के नहीं, इंडिया के हो गए 10:30। अच्छा, यू यहाँ यू तो भाई वहां से बात कर रहे हो, वहां के लिए। मैं सऊदी से बात कर रहा हूँ, मक्का से, तो यहाँ नहीं, पर जो है 10:30 तो तकरीबन इंडिया में ज्यादा हो जाएगा, सब लोग भाग जाएंगे। 10:30 में तो कोई नहीं आएगा, मैं तो आ जाऊंगा। तो फिर अच्छा मेरी तो 11 से एक क्लास चलती है सर के साथ, अनवर सर के साथ। अच्छा, तो क्या टाइमिंग आप देख ले, मेन चीज अभी टाइमिंग का है, बस थोड़ा सा मसला। अगर आप मॉर्निंग में हो जाए, जैसे कि अनवर सर ने क्लास ली थी मॉर्निंग सुबह 9 में बजे, तो सुबह यहाँ पर नहीं, बच्चे मेरा जो सुबह के मॉर्निंग में मेरा भी एक इंडिया के टाइमिंग बता रहा हूँ। मॉर्निंग में इंडिया मेरे पास 9 to 11 है बैच, तो या तो 9 से पहले 8 बजे हो सकता है, 8 से 9 1 घंटा दे सकता हूँ 8 मैं बजे नहीं सर, असल में मसला है यहाँ पे 4:30 बजे होंगे जब सुबह के, सुबह। हाँ, सुबह के तो 4 फिर बजे से 11 से 12 भी एक घंटा में दे सकता हूँ। 9 से 11, 11 से 12 11 चलेगा, 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा में दे सकता हूँ। सोच लो। से 12, तो यहाँ के हो गए 7:30। हाँ 7:30, बाकी कोई लोग से दिक्कत भी, नहीं है। बाकी लोग का क्या मतलब, बाकी लोग एग्री हैं 11 AM मॉर्निंग में? इवनिंग में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है क्या? इवनिंग में पॉसिबिलिटी नहीं? इवनिंग मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं 8 बजे से दे सकता हूँ रात को, 8 बजे से 9 बजे से दे सकता हूँ, 10 बजे से भी दे सकता हूँ रात को मैं।
अब तुम लोग बताओ 10 बजे अवेलेबल हो, 10 से 11 करोगे क्लास, करोगे तो उनको भी सही है और आप हम सबको सही है। 10 से 11 करना है तो कर लो, या 9:30 से करना है तो 9:30 से कर लो, 9:30 से 10:30 जो सेम टाइम, यही टाइम, सेम टाइम परफेक्ट है। 9:30 से 10:30 सबके लिए सूटेबल है। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि मेरी एक सुबह क्लास होती है सर के साथ 11 से 1। तो 10 बजे तो कर ही सकते हो ना तुम, 9:30 नहीं कर सकते क्या? अभी तो क्या दिक्कत है तुम्हें? 10 9:30 बजे से बताओ। 10 बजे से कोशिश कर सकता हूँ, 10 बजे के आसपास। हाँ 10 से 11 तो 9:30 नहीं 9:30 सर, हमारी नमाज है यहाँ पर ना ईशा की, तो वो टाइम मैच कर इसमें हो रहा है। तो 10 बजे कर सकते हो, यही ना? जी जी 10 बजे, यानी कि यहाँ के 7:30 हो रहे हैं। हाँ वहाँ तुम्हारे यहाँ 7:30 हो। तो दुबई में हो, कहाँ पे हो तुम? मैं सर दुबई में? सऊदी अरब में हूँ, मक्का में। अच्छा सऊदी में। मैं दुबई गया था सऊदी अरब में 2007 में। दुबई गया था 2007 में, दुबई का रामा सेंटर। नहीं 2 तो घंटे से। हाँ अच्छा इसलिए वहाँ पे जी दुबई में एक साइट्स पावर करके माइक्रोसॉफ्ट का गोल्ड पार्टनर इंस्टीट्यूट है, उसमें पढ़ाता था मैं दुबई में अच्छा 2007 के बाद। ठीक सही से। सर 10 से 11 ठीक है, डिफरेंस तो है। अगर बाकी लोग अग्री सर एक करते चीज हैं। और पूछनी थी मुझे, मैं अभी भूल गया। वो क्या थी, जैसे मान लीजिए ये आप हम कोर्स कर लेते हैं 1 महीने, इसके बाद भी आप कौन सा कोर्स और भी कराते हैं कोर्स, या सिर्फ यही कराते हैं क्या, जैसे नहीं आर्किटेक्ट वाला कोर्स है? मैं तो सारा एजोर का तो सारा कोर्स कराता हूँ, जो भी मैंने अच्छा बताया सब। आर्किटेक्ट है, डेवऑप्स है, सिक्योरिटी है, नेटवर्क है, एडमिन है, सब कराते हैं, डेवलपर को अच्छा छोड़ के। ठीक है, ठीक इसके अलावा AWS का कोर्स कराते हैं, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, वो कराते हैं। नहीं है ना? असल में सर मेरे पास क्या टाइम है थोड़ा सा, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास आप तो बता रहे हैं सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 महीने का ये करने के बाद मैं चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट भी मैं मतलब सारे जो है ना ये कोर्स करने के हाँ बाद फिर कर मैं लो, जॉब कोई स्टार्ट करूँ, उसमें कोई कर दिक्कत सकते तो हो। नहीं, मतलब ये है कि मैं शुरुआत मुझे एडमिन से ही करनी पड़ेगी, एजूर एडमिन से। हाँ हाँ वो करना तो एडमिन से करे, वही प्री रिक्वेस्ट है। डायरेक्टली आर्किटेक्ट करने अच्छा जाओगे तो होगा ही नहीं, पहले एडमिन तो करना ही पड़ेगा, है ना? अच्छा ठीक तो मतलब इंडिया के सर लगते हैं थोड़ा इसमें 4,500 रुपये? हाँ इंडिया का 4,800 है। 4,800 ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो तो सर कल चलो आप से टाइमिंग का आप जैसे अभी मुझे बता दें, जैसे हाँ अभी नहीं अगर 7:30। टाइमिंग, हाँ 10 बजे हो गया फिक्स है, 10 बजे कर लेंगे कल से 10 बजे। कल के 10 बजे। ठीक है। और सर इसके लिए हाँ मैं मतलब लैपटॉप जो है वो कितनी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो चाहिए, कुछ है मतलब ऐसा कुछ है नहीं मतलब? चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बस। ठीक है और ओके। अकाउंट बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अजोर पे क्रेडिट कार्ड क्लाउड के कितने में अकाउंट बनेगा? बनाओगे ना, अच्छा वो तो फ्री बनता है, 2 रुपये अच्छा लगते हैं, वो भी रिफंड हो जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड अच्छा इसलिए चाहिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो माइक्रोसॉफ्ट लेता है, यूएस का है ना, तो यूएस अच्छा में तो उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि वो आर द जेन्युइन पर्सन, इसके लिए वो लेके, मतलब आजकल तो क्रेडिट कार्ड सब जगह चलता है ना, चाहे तुम नहीं अमेजोन का सर, लो या मैं कोई असल वीडियो में ले लो। यूज नहीं करता, मतलब किसी और भाई के क्रेडिट कार्ड से काम कर सकता है नहीं? हाँ नहीं नहीं, अपने फ्रेंड का यूज कर सकते हो, पेरेंट्स का यूज कर सकते हो, ब्रदर का, किसी का भी यूज कर सकते हो। हाँ बस वो पॉसिबल है। हाँ ठीक है। ठीक ट्रेनिंग की क्या ट्रेनिंग फीस कितनी? आवाज तुम्हारी कम आ रही है, थोड़ा कस के बोलना। ट्रेनिंग फीस कितनी? ट्रेनिंग फीस पूछ रहे हो? ट्रेनिंग फीस आपको आमिर सर बताएंगे या अनवर सर बताएंगे। ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग ओके। फीस कंफर्मेशन सब कुछ वही बता देंगे। सो फीस उनको देना, ट्रेनिंग की गारंटी मेरी है, क्वालिटी की गारंटी ऑलराइट। मेरी है। सर एक चीज और, ये इसका जो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसका सर्टिफिकेशन होगा सर, वो गाइड कर दीजिएगा कि कैसे, कहाँ अपियर होना है, हाँ वो PhD में होगा सर्टिफिकेशन मैं कैसे बता होगा। दूंगा, हाँ वो दे दूँ, करवा दूंगा, वो गाइड हो जाएगा वो। ठीक 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 है सर, मैं कल मिलते हैं फिर 10 बजे। ओके ठीक ठीक है। ओके थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड ओके नाइट। थैंक यू सर। ओके।